Welcome to The Code. Construction, design and engineering. This is India's #1 construction podcast. पॉडकास्ट तो हमने शूट कर लिया, लेकिन आई वांटेड टू शो यू द साइट। तो हम लोग आईआईटी दिल्ली में हैं। यहाँ एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है जो ज्ञानेंद्र जी इन्होंने रिस्टोर किया है, एंड ही इज़ ऑल्सो रनिंग द फैसिलिटी। सो वी आर इन द प्लांट रूम ऑफ द स्विमिंग पूल एरिया राइट नाउ, एंड वी आर गोइंग टू शो यू द फीचर्स दैट वी डिस्कस्ड इन द पॉडकास्ट एंड ऑफ कोर्स द डिटेलिंग। सर, आप गाइड करें प्रोसेस क्या होता है, कैसे चलता है। तो आप पीछे पूरी एक इंडस्ट्री देख सकते हैं कि इट्स लुक लाइक सम काइंड ऑफ मैकेनिकल यूनिट कम्प्लीटली। इसमें जो आप ये बड़ी बड़ी फुटबॉल टाइप के जो फिल्टर्स देख रहे हैं, दीज आर बेसिकली सैंड फिल्टर्स मेड ऑफ कार्बन फाइबर and one of the very renowned brand Astral Pools, and each filter is having around 4000 kg of media which normally filter the waters, and you will see the distinct two colors over here in the complete filtration. One is a black, one is a green. It's just like similar to your body, where you can see the veins in a blue color and you can see the arteries in a red color. So black line is for the water which is not filtered, coming from let's say a balance tank or pool. Green line is for the filtered water which is directly going to the swimming pool. So here you can see 6 lines are coming from balance tank directly. Here we are having 7.5 HP pumps inside of this thing, and before coming to a filtration, here there is a strainer unit which normally remove all the particles, hairs or derbies or anything which is coming to the motor pumps to avoid the choking of the filtration system. तो पार्टिकुलेट मैटर यहाँ रह जाता है। This kind of baskets are inside. So everything normally stored in this kind of baskets, and you can clean it manually. So this complete unit, you can say from here to there, it's MS structure built up. So in this condition, this is a complete Indian setup. Pump from the Kirloskar brand, then strainers are from also renowned Indian brand. All the walls, everything is Indian setup except the filters which are imported. सर, पानी का इनपुट कहाँ से आ रहा है? जी, पानी का इनपुट input- और जो आपका बैलेंस टैंक है, उनसे इन पाइप से पानी आ रहा है ये डायरेक्टली 6 लाइन बैलेंस टैंक से आ रही है, और फिर ये बैलेंस सीधा टैंक से सीव में जा रहा है, जो सीव टाइप स्ट्रक्चर आपने यहाँ बनाया हुआ है, जी। जिससे पार्टिकुलेट मैटर यहाँ रुक जाता है। जी। एटलीस्ट मोटा मोटी जो छन्नी होती है, लीव्स हो गई, बाल हो गए, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल जो कि मोटर पंप को चोक कर सकता है या फिल्ट्रेशन को चोक कर वो सकता यहाँ है, रुक जाता है। इनिशियल बेसिक लेवल का फिल्ट्रेशन यहीं पे हो जाता ठीक है, एंड देन इट मूव्स ऑन टू द फिल्ट्रेशन process. Then it goes to a distributor channel. There is a 600 mm distributor channel. You can see the big line on the black downside. Hanji. It's equally distributing a water in all the filters. Hanji. Here you can see these are the wall battery. Each filtration is having a 5 kind of walls. Some are using to open the filtration, some are using to close the filtration, some are used for a backwash as well. I'll show you the line for the backwash. So this water normally goes to a filtration. It comes back and it goes to a green line. Green pipe, yeah. So green pipe is for the filtered water already. Yes. One line you can see which is again going back after filtration, which is for the backwash. Whenever we change the filtration on the reverse system to clean on the auto mode, जिस कंडीशन में पानी नीचे से जाता है फिल्ट्रेशन के और ऊपर से उसको पूरा बॉईल कर देता है, और जो भी ऊपर उसके डर्बीज, हेयर्स जो भी फंसे होते हैं फिल्टर्स के अंदर, वो सब के सब बैकवॉश में पूरे चले जाते हैं। हम आपको एक बार बैकवॉश भी करके दिखाएंगे कि बैकवॉश के पानी की क्वालिटी कितनी गंदी आती है। ठीक है, एक सर ये बताना, ये 5 लिवर्स हैं यहाँ पे, इन 5 का फंक्शन क्या है? 5 का फंक्शन है, लेट्स से कि आपको कोई फिल्ट्रेशन नहीं चलाना है। पहला फंक्शन ये है कि आपने एक फिल्ट्रेशन को क्लोज किया हुआ है, तो उस फिल्ट्रेशन को हम बाईपास कर देंगे। ये वॉल क्लोज कर दिया आपने, ये वॉल क्लोज कर दिया, इस फिल्ट्रेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, ये रेस्ट मोड पे है कम्प्लीटली। ओके। दूसरा, इस फिल्ट्रेशन को अगर आपने ऑन कर दिया है यहाँ पे,
तो ये वॉल क्लोज रखा हुआ है, आपने ये ऊपर जो एरो जा रहा है इससे ओपन कर दिया है, और यहाँ पे ये सीधा पानी फिल्ट्रेशन में जा रहा है। इस वॉल को आपने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है, तो वन वे बना हुआ है यहाँ से, और वहाँ से नीचे से ग्रीन लाइन में यहाँ से वापस आ रहा है पानी। ओके, तो ये वन लाइन हो गई। वन लाइन हो गई। अगर आप नीचे से ओपन कर देंगे तो डुअल लाइन हो जाएगी। नीचे से अगर ओपन कर देंगे, विच वन, नीचे ये वाला, ये भी ओपन कर देंगे साथ में। ये बाईपास के लिए भी बनाया हुआ है। लेट्स से कि हमें पूल में यूज ही नहीं करना और पूल का लोड कम रखना है, तो फ्लो यहीं से आ रहा है, इसमें भी डाल रहा है। अच्छा, ओके। सारी सारी लाइंस को बाईपास भी किया हुआ है कि अगर आप सारे के सारे फिल्टर सेक्शन बंद कर दो, खाली पानी रोटेट हो रहा है ओके, फॉर द रोटेशन पर्पज ओनली। इसमें अभी यूज नहीं हो रहा, तो देयर इज नो वे टू बेसिकली, और पानी गंदा भी नहीं हो रहा अभी, मोस्ट ऑफ द टाइम लीन पीरियड में चलेगा ये। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें आपको फिल्ट्रेशन को बाईपास करना पड़ता है व्हेन यू ऐड अ केमिकल इन द पूल ना। Right. तो अगर वो केमिकल फिल्ट्रेशन के अंदर जाएंगे तो फिल्टर मीडिया को चोक कर देते हैं। उस कंडीशन में लेट्स से व्हेन यू यूज अ ब्लीचिंग पाउडर और लिक्विड ब्लीचिंग, उसको हम अवॉइड करते हैं कि फिल्ट्रेशन के अंदर जाए, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल सैंड मीडिया होता है, और नेचुरल सैंड मीडिया ब्लीचिंग के कॉन्टैक्ट में आते ही चोक होना शुरू हो जाता ये है। किस टाइप का फिल्टर है? इट्स अ सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर मेड ऑफ फाइबर बॉडी। सैंड फिल्टर में भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं कि इसका 1/3 लेयर होगा वो बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल होंगे 16x32 मैश साइज के। उससे जो नीचे की एक लेयर होगी उसमें 8x16 के होंगे। उससे नीचे की जो एक लेयर होगी उसमें 4x8 के होंगे। ओके, जो हमारा पुराना सेटअप सिस्टम है अब फिल्टरिंग एनीथिंग, आपको जो नेचुरल स्टोन मिलते हैं बोल्डर टाइप के छोटे छोटे गोल, बिल्कुल वो इसमें सबसे नीचे की टाइप साइड में होते हैं, फाइनेस्ट पार्टिकल नीचे, फिर वो सर बिल्कुल। वेरी नाइस। ये यहाँ से जो पाइपलाइन जा रही है, आप एक पीछे की तरफ पाइपलाइन जाती हुई देखेंगे हर फिल्टर से। सो दिस इज फॉर द स्पेशली फॉर द बैक वॉश। आप जब भी फिल्टर को क्लीन करना चाहें, रिवर्स में डालना चाहें, तो उसके लिए पाइपलाइन यूज होती है बेसिकली। एंड दिस वाटर नॉर्मली गोज टू ड्रेन लाइन where we were talking about saving of water. So in the new pools, it should be one more tank with the balance tank, which should be a kind of recycled water using tank. इस पाइप को उसमें ले जाया जा सकता है डायरेक्टली, जहाँ पे आप पानी स्टोर करें 1 लाख 2 लाख 3 लाख लीटर तक, और उसके बाद उसको ट्रीट करें एंड दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं। पर्पस इज नॉट टू वेस्ट वाटर, नॉट टू वेस्ट, बिकॉज आने वाले टाइम में दिल्ली में जो पानी की शॉर्टेज है उसके बाद पानी तो बचना ही नहीं है। पोर्टेबल वाटर का बड़ा इशू है आगे, टिल द टाइम वी डोंट एक्चुअली ट्रीट इट। सो ये आपके 4 टैंक्स यही सेम फंक्शनैलिटी कर रहे हैं। ये 4 टैंक्स हैं, ईच फिल्ट्रेशन का साइज ऑलमोस्ट 2000 mm है, विच इज टेकन फ्रॉम द सेंटर। इट्स अ डायमीटर एक्चुअली, एंड 4000 किलोवाट ऑफ किलो। ये पूल ओलंपिक साइज है, 100%। 25 लाख लीटर पानी है। We normally counted somewhere around 27 lakh because 25 lakh is in the pool, and plus pool there is is a in baby pool, plus there is a balance tank, plus there is a water in the lines. Oh yes. So that is somewhere around 27 लाख लीटर्स 27 ऑफ वाटर, राइट। अब उसके मुताबिक उतने फिल्टर्स लगे हुए हैं ताकि वो उतनी स्पीड से चर्न आउट हो सके। आपने एक रेट बताया था कि कितने घंटे में पानी फ्लो रेट। हाँ, तो इसका फ्लो रेट क्या है? इसका फ्लो रेट अप्रॉक्स 4 आवर्स के आसपास का है, अगर हम इसको फुल कैपेसिटी भी यूज करते हैं तो। 4 आवर्स में पूरा पानी है एक बार जी, पूरा रिप्लेस हो जाए, टर्न अराउंड टाइम। करेगा। वेरी नाइस, ओके, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि दिस ग्रीन लाइन इज स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड द बैक टू द पूल, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइन में बीच में एक और सिस्टम लगा हुआ है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट सिस्टम फॉर डिसइंफेक्शन पर्पज ओनली, जिससे क्लोरीन का कंजम्पशन कम हो जाए पानी के अंदर। जितना भी यूज हम कर रहे हैं उससे 60% के आसपास क्लोरीन कंजम्पशन को कम कर देता है। यूवी सिस्टम है ये? यूवी सिस्टम, नॉर्मली इन शॉर्ट फॉर्म इट्स कॉल्ड यूवी सिस्टम। ईच यूवी इज हैविंग अ 6 tubes. You can see clearly these are 6 tube. Each tube is having around 3 feet of length, and each tube is 36 watt actually. So this is a massive and a bacteria killing machine है, biggest UVs which are available for the commercial use. Right. And these all are automated PLCs with the PCB panels. And again these are Astral made. इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसको ऑलमोस्ट 12 years हो चुके हैं इंस्टॉल हुए। ओके, दिस ईयर वी हैव चेंज द कंप्लीट यूवी ट्यूब्स, बट दिस इज वर्किंग विदाउट एनी फॉल्ट इन लास्ट 12 years. ओके, व्हाट इज इट शोइंग? रीडिंग में क्या दिखाता है इसमें? रीडिंग में जैसे क्लोज आप अगर देखेंगे तो इट्स शोइंग अ फंक्शन ऑफ यूवी लाइट्स की 1 2 3 4 5 6 एंड 2 नंबर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। देयर इज अ माल फंक्शन इन 2 number ट्यूब। ओके, तो ये उसकी बस उसकी वर्केबिलिटी को गवर्न कर रहा है, एंड इट्स आल्सो रनिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम थ्रू इट। इसकी वर्केबिलिटी को कवर करता है, प्लस इसके आवर्स शो करता है कि इसमें कितने आवर्स इस लैंप ने कवर कर लिए हैं। राइट।
यूवी इज बेसिकली ऑन द आवर्स बेसिस, इट्स अ लाइट, सो कितने टाइम यूज होगा उसके बाद इसकी लाइफ शेल जो है खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। ये 9000 आवर्स के बाद 50% कैपेसिटी रह जाती है इनकी काम करने की। नॉर्मली लोग यूवी को चेंज नहीं करते ट्यूब को, ये सोच के कि जब तक ट्यूब फ्यूज नहीं होगी चेंज नहीं करना है, लेकिन आप उसको 18,000 और 20,000 आवर्स के बाद देखेंगे तो उसकी एफिशिएंसी खत्म हो चुकी होती है। फिर 50% परफॉर्मेंस के बाद उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। आइडियली अगर आपको अपने पूल को डिसइंफेक्ट रखना है उसी क्वालिटी पे तो 100% उसको रिप्लेस करना चाहिए। अदरवाइज पीपल आर जस्ट ड्रैगिंग फॉर द ईयर्स कि ये फ्यूज़ तो ही नहीं है। ये फ्यूज़ होने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पुराना हो चुका है। आज के टाइम पे अगर आप किसी कार के अंदर भी कोई LED बल्ब डालते हैं या कोई भी डालते हैं, उसका एक वर्किंग आवर्स है, और वर्किंग आवर्स के अगर बियॉन्ड वो चला जाता है देन इट्स नॉट प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ लक्स विच यू वांट। द सेम वे ओवर हियर एज वेल। वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारा प्लांट रूम है जी। एनी अदर फीचर दैट यू वांट टू टॉक अबाउट हियर? Because electrical or mainly plumbing and the filtration process, that is what we are trying to explain. बिल्कुल। Let's go to the pool now. सो इस टाइम हम पूल डेक पे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फुल ओलंपिक साइज पूल है 25 by 50 मीटर्स का, एंड द डेप्थ इज़ 4 feet एट द शैलो साइड एंड 7 feet एट द डीप साइड। दिस पूल इज़ करंटली इन द सिचुएशन फॉर द वाटर पोलो मैच बिकॉज IIT दिल्ली इज़ हैविंग इंटर IIT कॉम्पिटिशन, जिसके लिए इसका सेटअप जो है वो वर्टिकली के बदले डायगनली रखा गया पूरा पूरा करके जी। तो अब इस टाइम आप कंडीशन देख सकते हैं, जब हमने इस पूल को रिस्टोर किया था तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि दिस पूल हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्टिकल वॉल, जहाँ पे वर्टिकल वॉल के बीच में जॉइंट है जो ऊपर ब्लॉक बनाया गया था, दैट जॉइंट वाज नॉट टेकन केयर वेल, इट वाज नॉट इवन डन अ रीबारिंग और एनी काइंड ऑफ एंकर फास्टिंग जिससे वो रिटेन कर सकता। विद द टाइम 10 years ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है इसमें स्लोप में पीछे की तरफ ये धंसना शुरू हो गया था। इसमें अराउंड 10 to 12 डिग्री का पीछे जो है डाउनफॉल आ गया था। देन वी हैव टेकन ऑफ द कंप्लीट ब्लॉक, वी हैव चिजल ऑफ द वॉल एज वेल फॉर अराउंड 1.5 feet ऑन दिस स्टार्टिंग साइड। स्ट्रक्चरल रिहेबिलिटेशन करनी पड़ी फिर आपको। यहाँ पे जो आप ये जॉइंट देख रहे हैं, जो वाटर लेवल है यहाँ पे इस टाइम पे, इस वाटर लेवल के यहाँ पे पहले बहुत बड़ा एक क्रैक था जिससे यहाँ से पानी जाया करता था और पीछे पूरे डेक के ऊपर पानी निकलता था। हमने इसको यहाँ से अराउंड 1.5 feet नीचे तक चिजल करके पहले रीबारिंग किया है, रीबारिंग के बाद में फिर इसको रिस्टोरिंग करना शुरू किया है पूरा का पूरा। राइट। और इसमें जो आप होल्स देख रहे हैं जिसमें स्टील के कप्स लगे हैं लेन होल्डिंग के लिए, दीज आर ऑल्सो फिक्स्ड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली। ये वही है जो आपने एक्सप्लेन किया था कि ग्राउट करके आपने बिल्कुल ऐसे भी मटेरियल्स आ गए जो पानी के अंदर आप सीधा फिक्स कर सकते हो। यस, पॉलीमर रेजिन एक्चुअली। पॉलीमर रेजिन, यस। एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है आई थिंक 2.5 टन के आसपास है पुलिंग कैपेसिटी इसकी, एंड इसको फिक्स होने में खाली 15 मिनट के टाइम लगता है। लेट्स से कि इफ़ यू आर फिक्सिंग समथिंग ऑन द रूफ एज वेल, तो इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है प्रोडक्ट की कि विद इन अ 10 to 15 minutes आप इसको फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ जो है रिटेन करना शुरू कर देगा। 25 लाख लीटर का वाटर प्रेशर कितना होता होगा स्ट्रक्चर के ऊपर यार? तो अब ये जो फ्लो जा रहा है, दिस इज द ड्रेन, वेयर इज दिस वाटर गोइंग टू नाउ? दिस फ्लो इज गोइंग टुवर्ड द बैलेंस टैंक। तो ये ओवरफ्लो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है ड्रेन से बैलेंस टैंक की तरफ जा रहा है। स्विमिंग पूल पे जो भी स्टोन यूज हो सकता है, आप इस पे देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्टोन जो है 100% सैंड ब्लास्ट है। इट्स अ ग्रेनाइट बट 100% सैंड ब्लास्ट विच इज प्रोवाइडिंग यू रेसिस्टेंस लेवल ऑफ ग्रेड 15 एक्चुअली। जहाँ पे इंडिया में ग्रेड 15 और 16 लेवल्स की टाइल्स, इंडस्ट्रियल टाइल ही बहुत कम आती हैं। बहुत लिमिटेड रेंज है जिसमें आपको मैन्युफैक्चर से स्पेशली ऑन डिमांड मैन्युफैक्चर करवाना पड़ता है। तो ये हो सकता है फिर ऑन साइट खुद ही कराना पड़ता होगा? हाँ, ये ऑन ऑर्डर ही तैयार होता है बेसिकली। दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड जॉब। वो नॉर्मली जो हमारा DSR है गवर्नमेंट का, उसमें ये है ही नहीं। ओके। इसके रेट्स ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट क्या है, या आप देखेंगे लपाटो आपको मिलेगा, लेदर फिनिश मिलेगा, सैंड ब्लास्ट का कोई रेट नहीं है उसके अंदर पूरा का पूरा। So this is something done by a conscious हाँ, सर्विस प्रोवाइडर। दे वर लुकिंग फॉर समथिंग कि जो स्टोन है ना वो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए ये किसी के पास जवाब नहीं था कि ये है कैसा। पूछने पे ये नहीं पता था कि ये स्टोन की क्वालिटी क्या है एक्चुअल में। जिस एरिया पे हम खड़े हैं इस टाइम पे, यहाँ से अगर आप पूल देखेंगे तो पूल से बिल्कुल कनेक्टेड है ये बैलेंस टैंक। दो वर्टिकल लाइन आ रही है, दो वर्टिकल लाइन आ रही है। एक लेफ्ट साइड से इसका ड्रेन चैनल आ रहा है, एक राइट साइड से इसका ड्रेन चैनल आ रहा है। एंड दिस एरिया इटसेल्फ इज समवेयर अराउंड 18 feet by 15 feet in width and length, and depth somewhere would be around 15 feet. तो आप इसमें अंदर देख सकते हैं कि आपको टाइलें दिख रही हैं अंदर, और उसके साथ में कुछ 15 का जी ये बैलेंस टैंक है। बैलेंस टैंक है। और इसके अंदर से नॉर्मली फिल्ट्रेशन पूरा का पूरा पानी जो है वो खींच रहा है यहाँ से। जो हमने आपको वहाँ पे 6 लाइंस दिखाई थी वो पूरी की पूरी इससे ही कनेक्टेड है। ये प्लांट रूम में जा रहा है पानी, प्लांट रूम में जा रहा है, वहाँ से फिल्टर होकर दिस सर्कलिंग बैक टू द पूल।
जब हमने Or to the balance इसको रिहेबिलिट करना शुरू किया था तो हमारे साथ चैलेंज ये था कि हमें ये टेक्निकली फॉल्ट बताया गया था कि इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन में जो पानी जाता है वो पानी उठाना बंद कर चुकी है, लाइनें ख़राब हो चुकी हैं। Oh, और जब हमने खोल खाल के इनको चेक किया तो इनके अंदर कहीं पे बोरियां फंसी हुई थी, कहीं पे बॉल फंसी हुई थी। Right. उसको कट करके पूरा का पूरा नया इंस्टॉलेशन किया वॉल्स का। तो दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स जॉब बिकॉज व्हेन यू वर्क अंडर वाटर और इन द डेप्थ ना, तो दिस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्क। complicated plus risky plus hazardous. हाँ, तो उस तरीके की स्किल लेबर चाहिए, उस तरीके का स्किल्ड एक्सपर्टीज चाहिए आपको। sometime you will find a balance tank which are 25 feet deep, Right. and you don't know ki what is the structure inside and from how long it has been not clean. Wow. So there is a chances which can be create a panic condition जहाँ पे कोई गैस लीक हो जाए अंदर या कोई गैस फॉर्म हो रखी हो। नहीं सर, एक चीज़ और है ना, मेंटेनेंस में फर्स्ट टू ड्रेन द एंटायर सिस्टम आउट एट ऑल या एंड देन सर्विस इट, वो इम्पॉसिबल टास्क है वो कहीं ना कहीं। ये चैलेंज हमारे साथ जब 29 जून को जिस टाइम फर्स्ट टाइम डिजास्टर हुआ था दिल्ली के अंदर, जब पे जहाँ पे सारे के सारे बेसमेंट वगैरह भी ओवर फ्लडेड हो गए थे पूरे के पूरे, वहाँ पे ये आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग पूल, तो इसके जो ब्लॉक्स हैं मेरे को लगता है ये ऑलमोस्ट अराउंड 2 फीट हैं पूल से, 2.5 फीट के आसपास है। वाटर लेवल इतना था पूरा का पूरा इस पूल के ऊपर, एंड देयर इज अ वॉल विच हैज़ बीन नाउ बिल्ट अप अगेन। वो गिर गई थी, वो वॉल पूरी गिर गई थी और वहाँ से पूरा पानी आ रहा था, एंड द पूल कंप्लीट पूल एरिया प्लस कंप्लीट रोड कंप्लीट पार्किंग, जो पीछे पार्किंग हाँ बिल्कुल एक सेम लेवल पे थी। तो सारा फ्लड हो गया था। ऑलमोस्ट 50 लाख ऑफ लीटर ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ दिस स्विमिंग पूल, जो कैपेसिटी उससे दुगना पानी यहाँ पे बह रहा था आपके साथ, और वो भी गंदा पानी सारा, वो भी गंदा पानी। तो सारा पूल और पानी एक जैसा हो गया था। देन इट टुक ऑलमोस्ट 10 days डे एंड नाइट, वन ऑलमोस्ट 1.5 truck of chemicals as well. So this is the same water. People thought कि it's going to be replaced, so it's not easy to replace a water in Delhi. करनी पड़ेगी, हाँ। वो तो कोई तरीका ही नहीं है, चांस ही नहीं है। 25 लाख लीटर पानी की कीमत भी तो बहुत हो जाती है सर, कहाँ जाओगे? 25 लाख कितनी लीटर cost पानी, और कितनी फिर वो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड व्हाट नॉट। Recently during a water crisis, I bought a water for my house itself only, and it was costing me 50 5,000 लीटर का पैसा शायद per 1500, liter। 5,000 लीटर का शायद 1,500 रुपये का या 2,000 रुपये का टैंक आता है। 3,000 लीटर का 1500 रुपये 1500 का रुपये टैंक। का हाँ, वो भी जानकारी में है कि आप जानते हैं कि आप पानी का 50 काम पैसा करते हैं। लीटर। 50 पैसे लीटर। हाँ तो वही ना, तो 50 पैसे लीटर का जब रेट आ गया है तो आने वाले टाइम में जैसे ये बैलेंस टैंक बना हुआ है, इस बैलेंस टैंक के साथ में आपको कहीं ना कहीं वाटर रिसाइकल टैंक भी बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा सिस्टम, जिससे आप जो भी बैकवॉश कर रहे हो, जो भी पानी उसमें आ रहा है, लेट्स से कि इसके साथ में आपने कहीं पर अगर रेन वाटर को भी कलेक्शन का सिस्टम बनाया हुआ है, हाँ, दैट कुड बी वेरी गुड सोर्स कि आपके पास पूल के पास जितना एरिया है, जो हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर सोलर लगाया जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक बनाया जाए, जितना भी ये डेक एरिया, अगर इसको कंप्लीट पूरे डेक एरिया को अगर एक टैंक बना देते तो ये मेरे को लगता है ऑलमोस्ट इट कैन स्टोर 15 to 20 लाख लीटर ऑफ वाटर। ओलंपिक साइज पूल को एक्चुअली जब आप बता रहे हो वर्ड्स में तब तो समझ में नहीं आता, हाँ। बट व्हेन यू एक्चुअली स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लेन एंड यू सी द विड्थ ऑफ द लेन, देन यू रियलाइज कि जो आप कह रहे थे ना, स्विमर्स बॉडी 7 feet हाइट एंड द स्पैन इज वेरी बिग, सो वो जो बटरफ्लाई स्ट्रोक भी होता है उसके अंदर पूरा स्पैन जाता है, किसी भी एथलीट का एक बहुत पूरा स्पैन जाता है, एंड दे नीड दैट वाइड लेन। एक्चुअली ना पूल की लेंथ ना नॉन स्विमर को पता चलती है, जो पूल में उतरता है और उसे पता चलता है कि मेरे को पूरा पूल क्रॉस करना है, राइट, और वो भी टेस्ट देना है कि इसको क्लियर करके आई कैन स्विम इन दिस पूल, राइट। एंड दिस काइंड ऑफ पूल्स आर वन ऑफ द यूनिक बॉडी इन दिल्ली एनसीआर। इफ यू काउंट दे आर हैंडफुल पूल्स दोज हु आर ऑफ दिस लेंथ। मेरे को लगता है शायद पूरे दिल्ली के अंदर 10 पूल्स भी नहीं होंगे, राइट। और 10 पूल्स में से आई थिंक मे बी साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज वन ओलंपिक साइज, या वो बड़ा है, वो इट्स नॉट ओलंपिक साइज, ओलंपिक साइज लेंथ ज्यादा है शायद उसकी, और विड्थ भी नहीं है शायद, विड्थ नहीं है, विड्थ नहीं है। उस कंडीशन में प्राइवेट बॉडीज में आई थिंक 3 or 4 पूल्स विल बी देयर। ओके, वन इज मॉडर्न स्कूल वसंत विहार, देन गुरु हरकिशन स्कूल, दीज आर 50 meter pools, then I think there is another KV एंड्यूसगंज। तो इसलिए तो मेडल नहीं आता सर हमारा स्विमिंग में कभी, मेंटेन नहीं हो पा रहे। दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी कमर्शलाइज प्रॉपरली इन द सेंस कि आप जब इतनी बड़ी वाटर बॉडी को अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपनी स्कूल के अंदर या बिल्टअप कर रहे हो, जिसमें आपका मैसिव फंड्स लग रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस में भी मैसिव फंड लगना है, उस कंडीशन में देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉज, there should be a flexibility from the DOE as well. These facility during a school, for the school and after school, it should be for the general public. इस बार ओलंपिक्स में कितने इवेंट्स थे स्विमिंग के? 16, राइट। ओलंपिक्स में मेडल फॉर ग्रैब थे शायद 48, यस, है ना। तो अगर जब हम वहाँ एथलीट ही नहीं खड़ा कर रहे एक तरीके से, जिसको बेचारे को फैसिलिटी मिल जाए, और मैं बेचारा ही कहूँगा, ऐसी फैसिलिटी जो घर के पास हो, जो कन्वीनियंस कुछ मिल जाए, कोई हम लोग किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे अपने एथलीट्स को इन टर्म्स ऑफ स्विमिंग एटलीस्ट। अराउंड 3 स्पोर्ट्स होल्ड 136 और 140 मेडल्स, तो जिसमें इंडिया कहीं पे कॉम्पिट ही नहीं करता है। हमने पहले गिव अप कर रखा है कि
ये हमारे बस का नहीं है। तो वो मेडल टैली तो हमारे लिए है ही नहीं वैसे। वो मेडल टैली नहीं है तो उसके बाद आप काउंट ही कहाँ होते हो फिर, राइट। देन यू फॉल डाउन टू द टैली। एंड ओलंपिक के अंदर बहुत पुरानी हिस्ट्री है, जो भी ओलंपिक में स्विमिंग को लीड करता है वो ओलंपिक की मेडल टैली को ही लीड करता है। दैट्स अ रीजन व्हाई द यूएस इज लीडिंग ओलंपिक्स फ्रॉम एजेस, राइट। सो yesterday we were talking about कि how the water look clear actually, ओ यस, ब्लू टाइल्स की बात करता था। blue tiles। और ये वही है, वो 162 बाय ये सेम वही टाइल है जो कि जो आपने बताया। वन एंड ओनली टाइल अप्रूव्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to install in the swimming pool. Right. And this tile is meant for the swimming pool. This is a non-algae tile. Size is so beautiful that normally with a small tile you get a lot of space or a lot of chances for the leakage. ये बिल्कुल आइडियल टाइल है इस चीज़ के लिए। वेरी नाइस। और इसमें आप देखेंगे काफ़ी टाइल्स तो जो है इसके अंदर 11 साल पुरानी है, और कुछ टाइल हमने इस बार रिप्लेस करी है फर्स्ट टाइम इसमें। ये लाइन यहाँ आकर क्यों रुक जाती है? This is actually called guideline for the swimmers. यस। स्विमर whenever they swim they know कि वो कहाँ पे एक्चुअल में। आप इसमें देखेंगे बीच बीच में ब्लैक और कटआउट बने हुए हैं, कटआउट्स बने हुए हैं। जिससे उनको आइडिया लगता है कि वो कितना मीटर स्विम कर चुके हैं। ओके। और ये जो टी मार्क है ये एंड वॉल से 2 मीटर पहले खत्म हो जाता है। द स्विमर नोज एक्चुअली कि इसके बाद हमें फ्लिप टर्न लेना है, और उससे फ्लिप टर्न से पहले मेरे को आर्म एक्शन कितना करना है, 1 आर्म एक्शन करना है, हाफ आर्म एक्शन करना है। ओके। So you should get a accuracy. This is to guide the swimmer. Yeah. So at least there should be a similarity in all the pools. If you are swimming in Indian pool, you are swimming in a Russian pool. So this guideline should be same. तो आपको पता है कि आपका arm length कितनी है पूरी की पूरी। ग्लोबल गाइडलाइन है। वेरी इंटरेस्टिंग। So guys, normally this is a wave eater lanes. Wave eater इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये सारी waves को किल करती हैं जब एक स्विमर स्विम कर रहा होता है, तो दूसरे स्विमर को उसका डिसएडवांटेज ना मिले, उसके लिए ये पानी के अंदर रोटेट होना शुरू होती हैं और वेव्स को किल कर देती हैं। And this is called a tensioner hook, which is basically to fix the lane. This is SS304. This hook is almost, I think, 12 or 13 years old. Just look at the quality. And when you rotate it, it will create a tension. On both sides, it will keep on creating a tension. If you will keep on rotating it, it will reduce the size of the lane. So जो lanes जो tight होती हैं, basically वो इसी की वजह से tight होती हैं। Okay. This is a global system to do. These are global system Standards. and standard. You can see inside as well the wire, which is SS304, especially meant for this purpose. For the ages, these wires normally do not get any kind of strain, any kind of rust. Even the small bolts, hooks, everything is SS304. Brilliant. मेरे को दिखाइएगा इसको। I wanted to get a shot of this in my hand because this is engineering. और आज Engineers Day पे शूट कर रहे हैं by the way हमें। This is brilliant. Awesome. Thank you sir. सो बेसिकली जो भी कमर्शियल पूल्स बनते हैं उनके साथ में सेकंड वाटर बॉडी एक और बनती है, उसको आप बेबी पूल भी बोल सकते हैं। एंड जहाँ पे ओलंपियन प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे उसके साथ में एक वार्म अप पूल बनता है। यहाँ पे सिंस इट्स एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ओलंपिक्स का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे एक बेबी पूल है जो कि यहाँ पे स्टाफ है और उनके वार्ड्स जो हैं उनको कैटर करने के लिए। इस पूल के अंदर 2 इंचेस बाय 2 इंचेस की टाइल लगी हुई है, एंड आई थिंक दिस टाइल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड 12 years back. So you can see this, not a single tile has been replaced in last 12 years. There is a polymer epoxy of 4 mm spacer which is just making these joints very perfect. आपने एक बार लगाया है और आप भूल गए उसके बाद 12 साल के लिए, तो 12 साल तो हमने देख लिया, हो सकता है अगले 10 साल और ना निकलें कहीं पे भी ये। You can see the quality intact है पूरा का पूरा pool, and it has been used for last 12 years. And the tile which I was telling you about yesterday from Johnson and made in Italy, these are the tiles which each piece somewhere costs around 2,000 rupees. And these are specially made for the swimming pool purpose because there is a grip. You can see clearly. तो आप इस वाली टाइल की और इसकी बात कर रहे हो ना, एज की पूरे की? खाली एक सिंगल पीस। ओके, अच्छा ये सिंगल पीस, ये सिंगल पीस है, राइट। इसके पीछे जो फ्लैट पीस चैनल की तरह ऐड कर रहा है एक तरीके से। तो ये नेचुरल ग्रिप प्रोवाइड करता है बिल्कुल ग्रिप के लिए। ओके, इंटरेस्टिंग। सर एक बात नोटिस करी मैंने, जो ओलंपिक साइज पूल है उसके अंदर वो पानी फ्लोइंग सा है, थोड़ी हल्की हल्की वेव है उसके अंदर, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है। ये किडी पूल फिर भी थोड़ा स्टिल होता है। डिपेंड करता है कि अगर या वो साइज की वजह से लग रहा है ऐसा। पूल में अगर एक तो विंड जो होती है वो उसके फ्लो को डाइवर्ट करती है, दूसरा अगर कहीं पे आपके जो पूरी ग्राउंड लेवल पे अगर ज़ीरो नहीं है पूल या उसके एजेस ज़ीरो नहीं है, तो उसका जो ओवरफ्लो सिस्टम होगा
वो वन साइड होगा या टू साइड होगा, वो पूरा इवन ओवरफ्लो नहीं होगा पूरे पूल के अंदर। राइट। इस पूल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शैलो साइड में ना कहीं पे भी ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, ये खाली डीप साइड से ओवरफ्लो कर रहा है। ऑल्दो ड्रेन चैनल पूरे डीप साइड से लेके शैलो साइड तक पूरा लगा हुआ है दोनों साइड में इसमें। इंटरेस्टिंग। अब मूविंग वाटर में तो मच्छर आते ही नहीं, वो तो कभी होता नहीं ना, मूविंग वाटर स्टिल वाटर में ही बनते हैं मच्छर। एक तो मच्छर जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, दीज आर द वाटर बॉर्न इंसेक्ट्स एक्चुअली, and they are very common when there is a disbalance in the pH and frequently rain is happening and weather is changing. हमारे पूल में भी आपको एक दो देखने को मिल जाएंगे वो। Okay. And there is a manual process, you have to take it out through the net only. वो जो नेट से क्लीन कर, नेट से निकलते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है, वो अगर आप किसी भी तरह बाहर डाल देंगे तो वो वापस पूल में चले जाएंगे।